بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین وان جہنم لموعدہم اجمعین لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم۔ محترم حاضرین، یہاں سورہ ہجر کی 3 آیتیں میں چھوٹی چھوٹی آیتیں آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا ہوں۔ یہ سورہ 15واں سورہ ہے، سورہ ہجر۔ یہاں اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کا قصہ بتایا ہے اس میں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ پیدا فرمایا، اس کے بعد چند نام سکھایا، فرشتوں کو وہ نام بتانے کے لیے کہا تو فرشتے بتا نہیں سکے، بعد میں آدم علیہ السلام بتایا، پوچھا تو آدم علیہ السلام بتا دیے ان چیزوں کے نام۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو، تو شیطان سجدہ کیا نہیں، وہاں تھا انہیں بھی شیطان سجدہ کرا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے اسے، کیوں بھائی کیا بات ہے، کیوں سجدہ کرا نہیں؟ یہ تو پرانے باتیں ہیں، میں سنے ہوئے ہیں، اب یہ جو آیتیں پڑھا ہوں اسے اس کے ساتھ لنک ہے، تعلق ہے، تو اس لیے وہ یہاں ہے وہ پوری آیتیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ تو تقریباً 10-12 آیتیں پیچھے سے اگر ہمیں پڑھیں گے تو وہ پورا قصہ، اب وہ تو ہمیں بار بار سنے ہی، تو اس لیے میں آپ کو ایسے ہی بتا رہا ہوں۔ تو وہ کہتا ہے کیوں بھائی سجدہ کرے نہیں؟ تو انہوں نے بولتا ہے انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ کس سے بہتر ہوں؟ آدمی سے، انسان سے میں بہتر ہوں۔ کیوں؟ تو اسے مٹی سے بنایا ہے، مجھے آگ سے بنایا ہے، تو مٹی سے آگ بہتر ہے، اچھی ہے، تو میرا درجہ بڑا، میں کیوں جھکوں اس کے سامنے؟ تو اس طریقے سے فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا جا میرے دربار سے نکل۔ قال فاخرج منها فإنك رجیم، فرمایا اب تو نکل جا کیونکہ تو دھتکارا ہوا ہے، میرے پاس سے کہ ڈھکل دیا ہو میرے دربار سے، نکل جا یہاں سے، بولتا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور تجھ پر میری لعنت ہے، پھٹکار ہے قیامت کے دن تک، قیامت تک تیرے اوپر پھٹکار ہے۔ تو وہ شیطان پوچھتا ہے اے بات اگر ایسی ہے تو پھر پوچھا اے میرے اللہ، اے میرے رب، مجھے پیدا کرنے والا، پالنے والا، تو یہ بات مانتا ہوا بھی پھر پوچھتا ہے، کیا پوچھتا ہے؟ قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، کہنے لگا کہ اے میرے رب، انہیں ناراض ہو گئے، کیا بھی اللہ سے ناراض ہوا نہیں، لیکن پھر پوچھتے وقت میں یہی پوچھتا ہے، کیا؟ اے میرے پروردگار، اے میرے رب، اے میرے پالنے والے، اے میرے پیدا کرنے والے، مجھے مہلت دے۔ کب تک مہلت دے؟ جب تک میں قیامت کے دن اٹھتی نا خبران سے، اس دن تک مجھے ٹائم دے۔ قال فإنك من المنذرین، تو اللہ فرمایا اچھا جا تو ان میں سے جنہیں مہلت دی جاتی ہے، تجھے ٹائم دیا ہوں، جا قیامت تک تو دنیا میں رہو اور رہ کر کیا کرتے کر۔ الی یوم الوقت المعلوم، روز مقرر کے وقت تک، وہ مقرر جو وقت ہے، فکسڈ جو اللہ کا فکسڈ ٹائم ہے، وہ صرف اللہ کو معلوم، اللہ کے سوا کسی کو معلوم، تو اس وقت تک میں تجھے ٹائم دیتا ہوں، جا۔ قال ربی بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین۔ تو شیطان کہتا ہے، شیطان نے کہا کہ اے میرے رب، چونکہ تو نے مجھے ہٹا دیا ہے، اس راستے سے ہٹا دیا ہے، مجھے بھی قسم ہے میں بھی زمین میں ان کے لیے معاصی کو مزین کروں گا۔ معاصی کا تو برے کاموں کو اچھے کاموں کے سر کا دکھاؤں گا۔ اب شراب پینے والے کیا ہے، وہ حالانکہ صحت کے لیے نقصان ہے، جسم کے لیے، اندر لیور خراب ہو جاتا ہے، خون کے اندر خرابی آ جاتی ہے، رگاں کے اندر کمزوری، کپاہٹ آ جاتی ہے، کانپنا شروع ہو جاتا ہے، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی وہ ایک اٹریکشن کی جیسا اسے پیش کرتا ہوں میں، ہر سارے برے کاموں کو میں کیا کرتا ہوں، اس کے اندر ان کو کھینچنے والی طاقت ہونا، اچھا بنا کو پیش کرتا ہوں، اور سب کو بہکاؤں گا بھی، ان کو برے چیزوں کو، برے کاموں کو اچھے بنا کر دکھاؤں گا، اور غلط راستے میں
लेकर जाऊंगा, इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन, लेकिन कहता है सिवाय तेरे उन बंदों के जो मुंतखब कर लिए गए हैं, मगर वो बंदे जो तेरी तरफ से तू चुन लिया है, मैं उनको क्या भी कर सकता नहीं, मैं उनको क्या भी कर सकता नहीं, लेकिन बाकी के हम सबको मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। अब ये सिवाय वो बंदे जिनको तू चुन लिया है, किन को चुन लिया है? अल्लाह ताला असल में जो चुन कर रखा है वो तो पैगम्बर हैं, नबियान जितने भी, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे नबी आखिरी पैगम्बर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अल्लाह ताला इनको चुन लिया है। अब इनको कुछ नहीं कर सकता। अगर इनको भी बहका दिया, इनको भी गलत रास्ते में लेके चला गया, तो फिर उन्होंने नमूना कैसे बनती हमारे लिए और सारी दुनिया को कैसे सुधारती? तो उसलिए उनको मैं क्या भी कर सकता नहीं। और उनके अलावा भी जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, अल्लाह जिसे चाहता है उनको बचाता है, लेकिन शैतान हर बंदे के पास जा करके हर इंसान को बहकाने की कोशिश करता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये बात फरमाए कि हर इंसान के साथ एक शैतान है, तो साहबा पूछे या रसूलल्लाह आप भी इंसान ही नहीं क्या, आपके साथ भी है क्या? तो नबी साहब ने हाँ है, मेरे साथ भी, फिर कैसे छता है हमेशा। और लेकिन वलाकिन असलमा अगर को है तो, लेकिन उन्हें मेरे ख्वाबों में आ गया है। तो क्या वो अरबी में अल्फाज के माने 2-3 माने आते, असलम वलाकिन असलम अगर को पढ़े ही असलम, तो मैं उससे बचको हूँ, उन्हें मुझे क्या भी कर सकता नहीं, एक। और एक माना क्या, उन्हें ईमान ला लिया है, मुसलमान हो गए, लेकिन पीछे से रहता है जिन, पीछे से रहता है, ऐसा कई माने बताए हैं उलमाए किराम। बहरहाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी एक शैतान था, लेकिन उन्हें क्या भी आपको बुरे रास्ते में ले आ सकता नहीं, बुरे काम करा सकता नहीं। और नमाज में बहुत ज्यादा सताता है, नमाज में बहुत ज्यादा सताता है। नबी साहब फरमाते हैं कि जब मौजिन अजान देता है मस्जिद में, तो वो भागता मस्जिद में से, लहू जुरातुन, और ऐसा 2 अल्फाज हैं, जोर से पाता भागता है ना तो आहिस्ता पाता भाग जाता है, रहता नहीं उन्हें, वो आवाज सुना तो अजान होते ही खत्म होते फिर मस्जिद में आ जाता है, फिर आकर नमाज को खलल डालने शुरू करता है। क्या क्या है कि याद कराता है, तज़क्कर कज़ा व कज़ा, नबी साहब बोलते वाह वो चीज़ ऐसा थी नहीं क्या, वो चीज़ याद करो, हाँ वो ऐसा नहीं क्या, ये ऐसा नहीं क्या, बस वैसे डाल को क्या कहा कि इंसान का ख्याल नमाज में नहीं सरका, इधर उधर भटकाता रहता है, एक काम से इधर उधर भटकाता रहता है, ख्याल नमाज में लगना नहीं, वहाँ क्या पढ़ते हैं मालूम है या नहीं, इन्हें कितने बार कितना काफी हो तो भी समझ में आ रहा नहीं, कहीं को ख्याल कहाँ की है, वो व्यापार नहीं वहाँ काम तो भी हैदराबाद गए थे नहीं क्या, नहीं वहाँ काम तो भी दिल्ली गए थे वो देखे नहीं क्या, अब वो व्यापार घर का क्या होया, वो सज्ञान क्या, ये सब याद दिलाते हैं। जरूरत नहीं किया सब याद दिला को, नमाज में दिल लगना नहीं, ऐसा कराता है शैतान, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। और एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज में आया, नमाज पढ़ाते हैं, शैतान आया, दूसरा शैतान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में उन्होंने इसका और एक शैतान आया, नमाज पढ़ाते हैं, एकदम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे एक डग, पीछे एकदम 2 डगा पीछे डाले, पीछे हटे एकदम, फिर आगे बढ़ को ऐसा हाथ लंबा करे, फिर खामोश रहो को हाथ बंदे को नमाज पढ़ा रहे। नमाज होने के बाद साहबा पूछे क्या हजरत क्या हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी ऐसा करे ना, तो नबी साहब फरमाते हैं कि शैतान आया और एक कड़े में अंगार लेकर आया, मेरे मुंह पर डालना चाहता था, फेंकना चाहता था, तो मैं उससे बचने के लिए एकदम पीछे हटा और फिर उसे पकड़ लेने के इरादा कर को हाथ लंबा करा, पकड़ लेंगे बोलकर, और पकड़ ले बंदाल था मैं उसे मस्जिद में। पूरे सुबह को बच्चे सब आग देखते, अंसार के बच्चे, मुहाजिरिन के बच्चे सब आग देखते हैं शैतान कैसा है क्या करते, लेकिन मुझे फौरन इस्माइल ये सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ याद है। उन्होंने दुआ करे थे, आए अल्लाह मुझे ऐसी ताकत ऐसी हुकूमत दे, वो हुकूमत वो ताकत मेरे बाद किसे मिलना नहीं। तो उनको एक ताकत क्या दिया था, बहुत सारे ताकत था, उसमें एक बात ये थी कि जिन्नातों को उन्होंने देखते थे, बात करते थे, जिन्नातों को देखते थे, बात करते, कंट्रोल में रखे थे। अब मैं पकड़ लिया तो उनकी दुआ ये हो जाती है, मुझे दिया तो ताकत दूसरे को देने को, अगर उन्होंने जो दुआ करे हैं तो वो ताकत मुझे भी आ जाती है, वो पावर, तो वो सोच के मैं छोड़ डाला, नहीं तो उसे बंदा ले आता मैं सुतून को, सुतून का तो एक पिलर को डाल कर बंदालता मैं उसे, खजूर के झाड़ को डाल कर बंदालता ऐसा। तो इस तरीके से शैतान हमेशा इंसान को गलत रास्ते में ले जाने, बुरे ख्याल में ले जाने, बुरे कामों में अच्छे अच्छे आदमियों को
آپ کو بتاؤں تو تعجب ہوتا ہے، بہت زیادہ علم حاصل کرے چلے بڑے بڑے عالمہ بھی بھاگ گئے، ہمیں ان کے علم میں 100 حصہ میں 1 حصہ بھی نہیں، اتنا علم رکھنے والے، اتنا نالج والے، قرآن کا علم، حدیث کا علم، ایسا بہت زیادہ علم پڑھنے والے بھی زیادہ ہو جائے تو شیطان ان کو کیا کرے گا تو غلط راستے میں لے کے چلے گا، خیالات ان کے عقیدہ بگاڑ ڈالا، غلط راستے میں چلے گا، کیسے کیسے کی کاما کرا ڈالا شیطان ان کے ذریعے، اور خاص کر پیسوں کے لیے بہت سارے کاما کرایا، بادشاہ بولے جیسا مانو، بادشاہ کیسے بولتے ہیں سن لو، پیسے آتی ہیں، بادشاہ کے حکم کے مطابق چلو، بادشاہ کی مرضی کے مطابق کرو، ایسا کر کے بہت سارے بڑے بڑے عالمہ، ٹاپ کے عالمہ کیا کرے ہیں، غلط فتوے دینا، غلط مسئلے بتانا، اور عالمہ کو ستانا، یہاں تک بھی شیطان نے ان کے ذریعے کرایا ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو ایسا کرے، وہ زمانے کے بڑے بڑے عالمہ، وہ زمانے کے بڑے بڑے عالمہ ان کو کرے، حضرت مالک ابن انس، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو، ان کو بھی ایسا کرے۔ وقت کا بادشاہ تھا، وہ بھی ایک سننے کی، یاد رکھنے کی بات ہے، شیطان کیسا کیسا بہکایا، تو اس کی مثالوں میں وہ بھی ایک آتی ہے کہ اس وقت کا بادشاہ تھا، اور بادشاہ کیا چاہتا تھا، کسی دوسرے آدمی کی عورت سے شادی کرنا چاہتا تھا، اب وہ آدمی زندہ ہے، انہیں مر گیا تو اس کے عدت گزارنے کے بعد شادی کر لے سکتی، 4 مہینے 10 دن کے بعد دوسرے مرد بنے سے انہیں عورت شادی کر لے سکتی ہے، یعنی تو طلاق دے دے تو 3 مہینے عدت گزارنے کے بعد انہیں رجوع کرے نہیں تو پھر انہیں شادی کر لے سکتا ہے۔ اب لیکن وہ بادشاہ وہ کیا کرنا تھا، نہیں، ظلم سے طلاق دینے کا، مرد بانے کو گلے چاقو رکھتا، تیری ضرور طلاق دے رہے تو کر کو ظلم کرنے کا، اب انہیں گلا کاٹ ڈالتی ہے، مر جا تو ایسا یہ ڈر سے ہے، اچھا طلاق دے رہا بولے تو ہاں طلاق ہو گئی، اب بادشاہ شادی کر لینے کا، تو ایسے ایک رول پاس کرانا کر کو دیکھیں۔ اب یہ کون پاس کراتی، ذرا اچھا پڑھے لکھے لوگ نا، معمولی آدمی یہ مسئلے سے مسائل کیا معلوم ہوتے ہیں، تو بادشاہ عوام کے سامنے یہ رول پاس کر کو، سوری مسلمانوں کے اندر یہ بات پھیلانا کر کو دیکھا۔ عوام کیا بولے اس زمانے کے، انہیں بھی ذرا پڑھے لکھے آدمی تھے، انہوں بولے ہمیں بادشاہ تمہارے یہ رول کو ہمیں مانتے نہیں، ظلم سے طلاق دیے تو بھی طلاق ہو جاتی ہے، طلاق دیتا ہے آدمی انہیں اس کی مرضی سے طلاق دینا، ظلم سے طلاق دیے تو کیسا ہوتی، طلاق ہوتی نہیں کر کو عوام کے ذہن میں تھا یہ معاملہ، یہ بات ایسی تھی، لیکن بادشاہ اسے ہو جاتی ہے کر کو ذرا عالمہ سے فتوے دلا کو بات پھیلا ڈالنا یہ چاہتا تھا۔ تو لوگ سب کیا بولے، بھائی تمہیں امام مالک بن انس، 4 امام بولتی نا ہمیں، تو مدینے کے امام تھے، انہوں مدینے میں رہتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں حدیث پڑھاتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھ کر حدیث پڑھاتے تھے مدینے والوں کو، انہوں اگر خبر لیے تو ہمیں مان لیتے، کہ تو انہوں وہ زمانے کے بڑے عالم، وہ زمانے کے بہت بڑے عالم، بہت بڑے علم والے۔ تو بادشاہ ان کو بلایا، حضرت آؤ، آ کو یہ فتویٰ دو، کیا فتویٰ، ظلم سے طلاق دیے تو بھی طلاق ہو جاتی ہے، بولے تو پھر کون ہے تو ظلم سے آدمی کو، کس کی بیوی اچھی خوبصورت آئے گا تو اسے پسند آئے گی، اسے گلے میں چاقو رکھو، تلوار رکھو، طلاق دے رہا ہو یہ کر لیا، طاقت والے، ایسا ہو جاتا نا مسئلہ۔ تو ان کو بلائے، تو ان کو بولے تھے حضرت امام مالک ابن انس، انہوں نے بولے نہیں ایسا مسئلہ نہیں ہے، ایسا ہوتا نہیں۔ اب انہوں خبر لے رہے تو عوام خبر لینے کے تیار نہیں، پبلک خبر لینے کے تیار نہیں، وہ قانون کو، اب بادشاہ کو یہ آ گئی بات، انانیت آئے گی دل میں، میری بات سنے نہیں کیسا، میری بات میں مسئلہ جاری کرانا کر کو ہوں، تو کیا کرے امام مالک کو پکڑو، بنو حضرت کو مارو، گاؤں گلی گلی پھرا پھرا مارتے تھے، بندال کو، ہاتھوں بندال کو، کوڑے لے کو مارتے تھے، اور لوگوں کو دکھانے دیکھو ہماری بات مانے نہیں تو ایسا ہم ان کی سزا دیتی ہیں۔ تو انہوں بھی کہا اللہ کے بندے یہ بالکل نیک آدمی تھے، بہت اچھے آدمی تھے، جہاں جہاں روڈا میں جا کھڑے کر کو مارتے پبلک میں، یہاں مارے پھر ادھر لے کے مارے پھر ادھر لے کے مارے، تو انہوں بولتے تھے من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا اعرفہ بنفسی، جو مجھے جانتا ہے میں کون کر کو انہیں جانتا ہے، جو نہیں جانتا 90 آدمی ہے، کون بھائی 90 آدمی کر کو جانتا معلوم نہیں
तो मैं खुद मालूम कराता हूँ, मैं मालिक इब्न अनस हूँ, मैं मालिक हूँ, मेरा नाम मालिक है, और मैं जुल्म की तलाक को जायज करार देता नहीं, जायज नहीं, वो होती नहीं तलाक को बोलते। बोले ना करो, फिर मारते, फिर बुला जाते, फिर मारते। तो ऐसा शैतान क्या कराया, आदमियों को गलत रास्ते में, गलत तरीके में, रकम से, किस्म से लेके गया। और लोग करे भी वो जमाने में वैसा। मामूली आदमी, अनपढ़ आदमी गुनाह के काम करना ये मामूली बात, उन्हें भी करना नहीं, लेकिन उसे मालूम नहीं मैं करता है। पढ़े लिखे आदमियों के जरिए भी बुरे काम भी कराया, और गलत मसले, कुरान का माना मतलब अलग, गलत मतलब बयान करना, हदीस का गलत मतलब बयान करना, उनको सताना, उनको मारना, उनको तकलीफ देना, ऐसा काम हुए ही। बहुत मारते थे उनको, लेकिन उन्होंने अल्लाह के नेक बंदे थे, उन्होंने कभी भी वो रूल को मानने के लिए तैयार हुए नहीं। बाद में छोड़ा ले उनको, बाद में अब ये हजरत सुनने वाले नहीं। अब वो कानून भी पास हुआ नहीं, वो कानून भी पास हुआ नहीं। तलाक मुकरह कहते उसे, मुकरह तो जुल्म जबरदस्ती से तलाक दिलाने का, वो चलती नहीं। उन्हें उसकी मर्जी से उसे पसंद नहीं है तो उन्हें तलाक दे सकता है, तुम्हें कौन होती है तलाक दिलाने वाले। तो ऐसा आलिमाओं को भी, बहुत सारे आलिमाओं को बहकाया है। और जर आलिमा लाश को पढ़ते पढ़ते ज्यादा इल्म हो जाको, अल्लाह नहीं है तो बोला नहीं, अल्लाह नहीं है। फिर जर आलिमा क्या बोले, सब चीज में अल्लाह, हर चीज में अल्लाह थे, हर चीज भी इसे वहदतुल वजूद कहती है। क्या बोलते हैं वहदतुल वजूद का मतलब क्या कहते, वो हिंदुओं के पास अकीदा है। इंदु गलडू अंदु लेडनी संदेह मेला ಎಂದೆಂದು वेतिकिना अंदंदे कलडू करको, उन्हें उनकी पद्य में हो। उसका मतलब क्या कहते, अल्लाह कहाँ है कहते, हर चीज में है, हर चीज में है। तुम्हें कहाँ ढूंढे तो मिलता है, हर चीज में है। तो ये इल्म हासिल करे सो आलिमा भी जरे आदमिया, ये अकीदा खासकर देवबंद के आलिमा में, पुराने अदमिया में, जरा अदमिया में है। क्या कहते बहुत अल्लाह में भी है, हर चीज में अल्लाह, उनकी किताबों में भी है, लिखो है वहदतुल वजूद, हर चीज में उन्हें अल्लाह। तो मेरे में भी, तुम्हारे में भी, उनके नौज बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो ऐसा वो हिंदुओं का अकीदा। तेरा वो क्या होता है, ज्यादा पढ़ ले को, अब कहाँ सब पैदा करे, सोच नहीं क्या तूने, तो अभी क्या है ये सब भी तेरा पावर ही से, तेरी ताकत ही नहीं क्या, तो क्या है इसमें सब में। ऐसा जरा समझने में ट्रैक बदल को चलेगी, ट्रैक बदल को। और जरा इस्लाम के कानून कायदे बात अकीदा को बिगाड़ते बिगाड़ते जरा क्या बोल रहे हैं, नौज बिल्ला, अल्लाह मोहम्मद ही अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो फिर किस्से कहानियां, मैं बचपन में किस्सा सुना था। जिब्रील इस्लाम वही लाते थे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाते थे। एक बार नबी साहब पूछे थे, तुम्हें वही लाती ना, कहाँ से लाती सो मालूम क्या तुम ना कुछ नहीं, मैं अब तक देखा नहीं, आवाज आता है साउंड, वो साउंड ले सुन को लेकर सुनाता हूँ। तो नहीं, आपसे गए तो दरवाजा खोल कर देखो गए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा लेकर को वही सुना डाल को आसमान पर गए, वो वही लगाती ना, वो रूम का दरवाजा खोल कर देखे तो वहां भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ को, आसमान से फिर नीचे देखे तो मक्के में भी, मदीने में भी, वो रूम में भी थे लोग, ऐसा बना दे। तो देता हूँ सब मैच, लेता हूँ सब मैच, कैसर का लगाते हैं सब मेरे करने सीखे, देते फिर मंजे है सभी, मैं भी उन्हें भी मैच, मैं भी उन्हें, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, नौज बिल्लाह। तो ऐसे अकीदे, गलत अकीदे। और फिर सूफीज़म भी उसमें, तसव्वुफ, वो सूफीज़म भी कैसा आ गया, शैतान की तरफ से आ गया। क्या कहते, जोरू नको, बच्चे नको, दुनिया नको, क्या भी नको, अल्लाह अल्लाह कर जाए, चलो जंगला में चल जाओ, पत्ते खा ले जाओ। वैसा नहीं है इस्लाम के अंदर, वैसा नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करे हैं, सहाबा क्या करे, वो क्षमा करना, उनसे हटकर तरीका, उन्होंने ऐसा गए नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ कर गए नहीं, मदीने में थे, सहाबा के साथ में थे, खाते पीते चलते फिरते, लोगांग समझाते, लोगांग दरमियान में थे, 5 वक्त नमाज मस्जिद में पढ़ते थे। सहाबा भी चलते फिरते, मेहनत मजदूरी करते, व्यापार करते, ज़िराअत करते, बकरियां चराते, ऊँटां चराते, खजूरां तोड़ते, जंगा करते, इंतकाल हो जाते, शादियां करते, साथ में थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में थे। उन्होंने कौन भी म्हणजे दुनिया नको, म्हणजे अल्लाह होना, ये म्हणजे घर नको, बीबी बच्चे नको, क्या भी नको, मैं चल जाता हूँ,
जैसा हिंदुओं के पास वो एक ये है, तपस करते जाग झाड़ा नीचे बढ़ जाने का। ऐसा क्या कहते, अल्लाह याद करते, अल्लाह की बात में बढ़ गए। अब वो उसकी तपस से खुश होकर अल्लाह भी सामने आ जाने का। हाँ को क्या भाई तेरी इबादत से मैं खुश हो रहा हूँ, क्या होना चाहिए बोल कर, तो उन्हें पूछा तो देवदार को चले जाने का अल्लाह से। तो ऐसे हिंदुओं के पास अकीदे हैं, वैसे जरे अकीदे हमारे मुसलमानों के पास भी आ गए हैं। अब उन्होंने क्या मामूल आदमी क्या अनपढ़ा क्या नहीं, अच्छा पढ़े लिखे आदमी थे, लेकिन ऐसा हो गए पढ़े लिखे आदमी भी शैतान क्या करे उनको क्या ऐसा इल्म ज्यादा है वालों को भी बहकाया है। मामूली आदमियों को बहकाना उसे चुटकी का खेल, क्या अभी अनपढ़ आदमी से क्या मालूम नहीं, उन्हें बुरे का मामला लगाना आसान। लेकिन एक इमाम ही अच्छे बड़े आलिम हैं, एक मदरसे के बड़े प्रिंसिपाल हैं, दाढ़ी टोपी जुब्बा कुरान हदीस बच्चा पढ़ाते हैं, उनके जरिए वो कामा करा सकता नहीं, शराब पिला सकता नहीं। अब उन्हें शराब बैठ के पीती क्या, सबके साथ आओ भाई पीएंगे शराब करो, पीते नहीं। अब उन्होंने कहा तो पते खेलते क्या, ऐसा काम मतलब जुआ उन्हें कर सकते नहीं। नहीं चलो भाई सब जने सिनेमा क्या बैठ के देखेंगे, देखते क्या देखते नहीं। तो वैसे वो रकम के कामा उनसे करा सकता नहीं, तो चलो भाई दूसरे रकम के कामा उनसे करेंगे। तो इस तरीके से सूफीज़म में, फिर वहदतुल वजूद में, फिर क्या गलत रास्ते में उनको भी उनके ख्यालात एक को रख डाला। एक आदमी इससे अरब मुल्कों से आया था, इराक से यहाँ को आया हिंदुस्तान को, वो जमाने में पुराने जमाने में मंसूर उसका नाम। यहाँ को हिंदुओं का अकीदा देख ले को गया, फिर वहां जाकर क्या करा उन्हें बगदाद में इराक में बादशाह के सामने जाकर खड़क बोला अनल हक कया, तो मैं अल्लाह कया भाई चल। यहाँ सुनको सीख ले गया नहीं, हिंदुओं का अकीदा है सब सुनको। हालांकि उन्हें भी जरा अच्छा पढ़ा लिखा आदमी थे, क्या उन्हें बिल्कुल अनपढ़ क्या भी नहीं था, अच्छा पढ़ा लिखा आदमी। अब इनके रास्ते में इनके माता में आ गया, जाको बोला अभी हाँ बादशाह मुसलमान है ना, हुकूमत पूरी मुसलमान की, क्या भाई इन्हें ऐसा बोलता है अनल हक कर को, तो मैं अल्लाह कर को बोलता है, बिल्कुल गलत बात है, सब बोलना नहीं। उसे क्या कि पूछे करे, उसके बाद कत्ल करा ले। खाजी साहब को पूछा बादशाह क्या करना भाई ऐसे आदमी को, हमें तो क्या भी करेंगे कत्ल कर डालो। जो आदमी अपने आप को अल्लाह बोलता है वैसे आदमी को क्या तुम्हें छोड़ दिया कत्ल, फिर बाद में कत्ल करा ले। वो बात तो सही है, करेक्ट है, अल्लाह तो इंसान अल्लाह नहीं हो सकता ना। अब उसे बहुत सारे हमारे इंडिया के आलिमा उसे फिर सपोर्ट में नहीं, उन्हें बोला क्या करेक्ट है, वो उन्हें समझ सके नहीं, कैसा बात तो गलत है ना। तो इस तरह से शैतान क्या कर रहा है, आवाम मामूल पब्लिक को जो ज्यादा इल्म वाले नहीं हैं उनको भी बहकाता है, और जो जरा ज्यादा पढ़े लिखे हैं उनको भी बहकाता है। तो वही बात यहाँ कि मैं गलत रास्ते में लेकर जाऊंगा उनको और गलत चीजों की तरफ उनको मायल करूंगा, मगर तेरे नेक बंदों को मैं नहीं कर सकता। तो उसके बाद अल्लाह फरमाया क़ाल हाज़ा सिरातुन अलैया मुस्तकीम, इरशाद हुआ कि हाँ यही मुझ तक पहुंचने की सीधी राह है। तो अल्लाह की तरफ से बताया गया कि देखो मेरे तरफ आना, मेरे तरफ पहुंचने का सीधा रास्ता क्या है कि तेरे बहकावे में आना नहीं, तेरे रास्ते में आना नहीं, तेरे गुमराही में आए सर का कौन सीधा रास्ते में आता है, उन्हें जन्नत को आ सकता है। अच्छा, अब उसके बाद अल्लाह ताला खुद फरमाता है इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान इल्ला मन इत्तबअका मिनल गाविन, मेरे बंदों पर तुझे कोई गलबा नहीं, मेरे जो नेक बंदे पैगंबर हैं उन्हों तो उनके ऊपर क्या भी गालिब हो सकता नहीं, गलबा पा सकता नहीं। इल्ला मन इत्तबअका मिनल गाविन, लेकिन हाँ जो गुमराह लोग तेरी पैरवी करते हैं उन्हों तेरे बाता में आ जाती और उन्हों गुमराह हो जाती। उसके बाद फरमाया अब जो मैं आपको पढ़कर सुनाया वो आयता जो आखिर में 3 आयता शुरू में पढ़कर सुनाया ना, तो उसमें कि मेरे नेक बंदों को तो कुछ नहीं कर सकता, मगर जो तेरे रास्ते में आना चाहते हैं आ जाते हैं, उन्हों तेरे पीछे से आकर उन्हों गुमराह हो जाते। तो ऐसे लोगों को क्या होगा, उनका अंजाम नतीजा क्या होगा, शैतान की बात मानकर शैतान के तरीके में चलने वाले, पूरे एकदम गलत रास्ते में चलने वाले का अंजाम क्या है। तो अल्लाह खुद फरमाता है व इन्ना जहन्नम लमौइदुहुम अजमाइन, यकीनन उन सब के वादे की जगह जहन्नम है।
जो तेरी बात सुनकर तेरे रास्ते में चलते हैं, तेरे तरीके में चलते हैं, तेरी इत्तिबा करते हैं, तो उनका ठिकाना जहन्नम है। और जहन्नम के बारे में क्या फरमाया, लहा सबअतु अबवाबिन, जिसके 7 दरवाजे हैं। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जहन्नम के 7 दरवाजे। और जन्नत का जो दारोगा, वॉचमैन, गेटमैन जो है, उनका नाम, वो भी फरिश्ते हैं, फरिश्ता है, उनका नाम रिजवान है, उनका नाम रिजवान। और दोज़ख के जो दरबान हैं, वॉचमैन जो है दरवाजे के ऊपर जो खड़े रहता है फरिश्ता, उनका नाम मालिक है, उनका नाम मालिक है। वो भी अल्लाह कुरान में उनका नाम भी बताया, मालिक का। तो अल्लाह ताला फरमाता है लहा सबअतु अबवाब, जहन्नम के 7 दरवाजे हैं। लिकुल्लि बाबिन मिनहुम जुज़ुम मक़सूम, हर दरवाजे के लिए उनका एक हिस्सा बटा हुआ है। कौन से दरवाजे से कौन जाना, उसका हिस्सा भी तकसीम हो गया है। कौन कौन से क्या गुनाह करे वाले कौन से दरवाजे से जाते हैं। और जन्नत के बारे में जब बात आई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं। ज्यादा नफिला पढ़ने वाले, नमाज तो सब जने पढ़ना होते, ज्यादा नफिला पढ़ने वाले उनके लिए एक दरवाजा है। ज्यादा रोजे रखने वाले उनके लिए एक दरवाजा है। खैर खैरत ज्यादा करने वाले उनके लिए एक दरवाजा है। तो इस तरीके से तो हर नेकी करने वाले के लिए एक एक दरवाजा है। वो वैसे खास खास क्वालिटी वाले को वो दरवाजे से बुलाएंगे, भाई ये काम करने वाले इधर से आओ, जन्नत में आओ, अंदर जन्नत में जाते हैं लेकिन ये दरवाजे से आओ। वो दरवाजे का नाम भी बाबुर रैयान है, जन्नत रोजेदारों के लिए। तो इस तरीके से अलग अलग दरवाजे हैं, अलग अलग दरवाजों से। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु पूछे, या रसूलल्लाह, किसे तो भी पूरे दरवाजे से बुलाने की, अंदर से जाने का चांस है क्या, मौका है क्या? नबी साहब बोलते हैं, हाँ मैं समझता हूँ कि तुमको ऐसा दर्जा दिया जाएगा कि हर दरवाजे से लोग बुलाएंगे, आए अबू बकर आओ इधर दरवाजे से, उन्होंने बोलेंगे नहीं आओ इधर, आओ इधर। तो इतना बड़ा दर्जा। तो इस तरीके से जन्नत के अलग अलग दरवाजों से अलग अलग किस्म के लोगों को बुलाया जाएगा। तो जहन्नम के भी 7 दरवाजे हैं और 7 दरवाजे से ज्यादा शराब पीने वाले, भाई पूरे शराब इधर से आओ, पूरे पत्ते खेलने वाले ये दरवाजे से आओ, झूठ बोलने वाले ये दरवाजे से आओ, सूद खाने वाले ब्याज ये दरवाजे से आओ, रिश्वत लेने वाले नाहक कमाई, लोगों को नाहक सताना मारना या कत्ल करने वाले नाहक कत्ल कर इधर से आओ, शायद ऐसा हो सकता है। 7 दरवाजे अलग अलग हैं, अल्लाह कुरान में बोल रहा है 7 दरवाजे अलग हैं उसके, और हर दरवाजे के लिए एक हिस्सा है, बात को अलग अलग किस्म के। अब वो कौन कौन कैसे हैं, अब वो हमको तो मालूम नहीं, लेकिन जन्नत के दर्जे बहुत ही ऊंचे हैं और दोज़ख के हिस्से भी अलग अलग हैं। दोज़ख के भी 7 हिस्से हैं, दोज़ख के भी 7 हिस्से हैं, उनके 7 नामा अलग अलग। जहन्नम में से टोटल मिलाकर सबको भी जहन्नम बोलते हैं, दोज़ख। हमें वो अरबी ये उर्दू में दोज़ख बोल लेते हैं, अरबी में उसका नाम दोज़ख नहीं, अरबी में आपको जहन्नम। अब वो जहन्नम में 7 अलग अलग हिस्से भी हैं या दर्जे ही या डिपार्टमेंट हैं, उसमें कौन कौन कैसे जाएंगे, यहाँ एक तफसीर के अंदर ये बात आई है। वो बात सुनाने के लिए मैं आपको ये आयतें पढ़कर सुनाया हूँ। अब देखिए वही बात उन्होंने बताई क्या, मसलन एक दरवाजा मुशरिकों के लिए, खाली शिरक करने वाले एक दरवाजे से आओ। एक दहरियों के लिए, दहरिया किसे बोलती हैं, अल्लाह से नहीं है। अब कहना दुनिया उसको तो कुछ पैदा होगी वो चलती है, अल्लाह से नहीं है। मुशरिका कौन है, अल्लाह को मानते ही, अल्लाह को मानते हैं, दूसरे बुतों को मानते हैं, उनको मुशरिक बोलते हैं। लेकिन दहरिया किसे बोलते हैं, अल्लाह कुछ मानता नहीं, अल्लाह से नहीं है, देयर इज नो गॉड, अल्लाह से नहीं। तो ऐसे अजनबी बल्ला की तो उनको एक दरवाजे से शायद बुलाया जाएगा, और जिंदगियों को एक दरवाजे से, जानियों को, सूदखोरों को, चोरों को, डाकुओं के लिए वगैरह वगैरह। तो ऐसा इन्हों समझाने के लिए हम लोग को बोले, कौन रहेगा तो हम बोलना नहीं, ऐसे ऐसे रहेंगे वो। उसके बाद फरमाए या 7 दरवाजों से मुराद 7 तबख और दर्जे हैं। उन्हें क्या बोलते हैं, 7 दरवाजे का मतलब दरवाजे से हो सकते हैं, यानी तो दर्जे, ये फर्स्ट अंतस, उसके तल्ले ग्राउंड, अंडरग्राउंड में एक अंतस, उसके तल्ले अंडरग्राउंड, उसके तल्ले अंडरग्राउंड, ऐसा
ऐसा गड़े भी हो सकते हैं। तो वो 7 हिस्सा के नाम यहाँ बताए हैं। कुरान में वो 7 नाम भी आए हैं। अल्लाह ताला कुरान में एक जगह एक नाम बताया, एक जगह एक नाम बताया, एक जगह एक नाम बताया। जहन्नम के बारे में अलग अलग नामा ही, वो पूरे नामा उन्होंने यहाँ बताए हैं, वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। एक पहला दर्जा है, पहला तबक या दर्जा जहन्नम, फर्स्ट जमीन के ऊपर है ना, ग्राउंड फ्लोर का, तो उसे उसका नाम जहन्नम इन्हें बताते हैं। ऐसा बहरहाल वो कैसा है क्या है हकीकत तो अल्लाह जानता है, लेकिन नामा ही उनके अलग अलग नामा ही, वो कुरान में अल्लाह बताया है इसका नाम ये, इसका नाम। अब वो कौन सी जगह कहाँ है क्या है अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन नामा मैं आपको सुनाता हूँ। एक आपको जहन्नम, दूसरा लजा, दूसरा आपको लजा, तीसरा हुतमा, चौथा साइर, पांचवा सखर, 6 जहीम, फिर 7वां हाविया। ये 7 नामा ये पूरे कुरान के अंदर आए हैं। और सबसे जो निचला दर्जा होगा, सबसे लास्ट, उसका जिक्र भी अल्लाह कुरान में कर कर, नाम तो वहां आया नहीं, लेकिन कौन जाति वो अल्लाह बोला है, कौन जाति वो अल्लाह बताया है। इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फल मिनन नार, दोज़ख में, अंगार में सबसे निचले दर्जे में जाने वाले मुनाफिका ही। अल्लाह को मानते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, नबी को मानते हैं, लेकिन मुनाफिक, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी, वो जमाने में थे ना, इस्लाम से दुश्मनी, ऊपर अच्छा अंदर अलग, ऊपर है अंदर है, तो ऐसे आदमियों को मुनाफिक बोलते हैं। ऐसे आदमियों के लिए जहन्नम का सबसे निचला गड़ा, अंडरग्राउंड में लास्ट बहुत ज्यादा अजाब होता है। तो इन्हें यहाँ बताए हैं, तब फतहुल खदीर बोल के किताब है, उसमें बताए हैं, क्या बताए हैं देखिए, सुनाता हूं मैं आपको। ऊपर का दर्जे में मुसलमान रहेंगे, ईमान वाले मुसलमान, लेकिन बुरे काम अल्लाह के करे हैं। अब उनको सजा देना, चंद लोगों को अल्लाह माफ कर डालता है, चंद लोगों को सजा देना, तो उनको भेज को जाओ भाई सजा कर ले, आ जाओ, जैसे जेल को जाती 6 महीने 3 महीने जेल काट ले, आ जाओ ये तुम्हारी सजा, अब जाओ तुम्हें फिर को। तो ऐसा वो लोग जन्नत को जाएंगे फिर चंद दिन रहने वास्ते। तो वो पहला दर्जा ये तफसीर में लिखे हैं। दूसरा को यहूदियों के वास्ते, दूसरा यहूदियों के वास्ते, तीसरा ईसाई, चौथे साबी, 5वीं में मजूसी। मजूसी का तो क्या, ये साबी का तो बेदीन, दीनिश नहीं, मैं दीन पर अमल करता हूं, क्या मेरे दिल में ऐसा चल तुम्हें मेरी मर्जी, ये ऐसा करना ऐसा करना, हाँ मेरी मर्जी, वो सब मैं सुनता नहीं, मेरे दिल में कैसा ऐसा करता हूँ, वैसे आदमियां। 5वां मजूसी, मजूस कहते अंगार को पूजा करने, अग्निदेव। तो 6ठे में मुशरिकीन, अंदर 6 में इसमें शिरिक करने वाले, और 7वें में मुनाफिकीन होंगे। सबसे ऊपर वाले दर्जे का नाम जहन्नम है, उसके बाद इसी तरतीब से नाम है। तो इस तरीके से 7 हिस्से, 7 नामा भी अल्लाह ताला खुद बताया। ये नामा पूरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए सो नहीं, वो हदीस के अंदर ऐसा हमें, हदीस से ज्यादा कुरान के अंदर ही किए नामा पूरे भी अल्लाह ताला बता डाला है। जहन्नम का, वो जहन्नम ऐसी है ऐसी है ऐसी है, 7 नामा अल्लाह ताला कुरान के अंदर भी बताया है। तो अब इन्हें समझने वाले क्या समझते हैं, अब 7 दरवाजे हैं तो 7 दरवाजे भी हो सकते हैं, या 7 जगह से जाकर अंदर 7 दर्जा में जाकर तो भी रहता है घर, ऐसा उन्होंने माना लिखने वाले, मतलब लिखने वाले समझाए हैं। तो अब हमें हमेशा अल्लाह ताला से ये दुआ करते रहना। क्या दुआ करना, अल्लाह जहन्नम से बचा, जहन्नम से बचा। चंद लोग जहन्नम में जाकर सजा पाकर जन्नत में आएंगे, लेकिन हमें क्या दुआ करना, जन्नत में जाना, लेकिन जहन्नम को गए बगैर जाना, वो असल बात। एक लहाजा भी 1 सेकंड भी जहन्नम में रह सकते नहीं, उतनी गर्म जगह वो, और उतनी तकलीफ वाली जगह। खुद कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, क्या फरमाता है, ठिकाना वहां रहना तो दूर की बात है, थोड़ी देर भी रह सकते नहीं वहां। बल्ला का वक्त रहने की बात, ज्यादा वक्त रहने की बात अलग है, तुम्हें थोड़ी देर भी रह सकते नहीं। इन्नहा सात मुस्तखर व मुकामा, मुस्तखर तो ठिकाना, मुस्तखर तो ठिकाना। अब हम जैसा घर है हमारा, हमें घर में ठिकाना रहती है, खाना पीना सोना बैठना, तो वहां रहती है हमें। तो
वैसी जगह भी नहीं है, वो रह सकते नहीं तुम्हें। मुकाम को तो थोड़ी देर खड़े चल जाना, जाते जाते हाँ जरा खड़े चले, तो वो थोड़ी देर खड़ती ना, तो वैसा भी तुम्हें खड़ सकते नहीं, वहां रह सकते नहीं, वैसी जगह वो। इन्नहा सात मुस्तखर्र व मुकामा, इतनी तकलीफ वाली जगह है वो। तो उसके वास्ते हमें क्या करना है, हमेशा दुआ करते रहना, ऐ अल्लाह जहन्नम से बचा, दोज़ख से बचा, दोज़ख की आग से बचा। अब हमारे से गलत कामा भी हो गई रहती, बुरे कामा भी इंसान से हो जाती, जानकर भी हो जाती या अनजाने में हो जाती। अब मैं क्या बुरे कामा करे नहीं कर, इंसान बोल देता है नमाज छोड़ डाले तो वो बड़ा बुरा काम, 5 वक्त नमाज पढ़ना, नमाज छोड़ डाले तो वो भी एक बल्ला का बुरे कामा से बड़ को हो जाता है। शराब पीना, झूठ बोलना, बुरे कामा करते ना, तो उससे बड़ी सजा इसे नमाज छोड़ डाले तो, नमाज पढ़ा नहीं तो। अब ठीक दिल में आया तो गया, गया तो गया, नहीं तो नहीं। ऐसा करे तो भी वो भी एक बहुत बड़ा गुने का काम हो। तो हमेशा क्या करना, हमें अल्लाह ताला से दुआ करना, ऐ अल्लाह जहन्नम के अज़ाब से बचा, जहन्नम के अज़ाब से बचा। अल्लाह वो भी बोला है, मेरे नेक बंदे वो हैं जो हमेशा दुआ करते हैं। क्या दुआ करते हैं, अल्लाह जहन्नम से बचा, अल्लाह कर को दुआ करते हैं, जहन्नम से बचने के लिए हमेशा दुआ करते हैं मेरे नेक बंदे। वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना सिर्फ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा। और वो मेरे नेक बंदे हैं जो कहते हैं, अल्लाह हमको जहन्नम के अज़ाब से फेर दे, अंगार से फेर का तो उधर रुख होंगे, डायरेक्शन उधर नहीं, इसका डायरेक्शन ही बदला था, जाने का तो उधर हना नहीं। इन्ना अज़ाबहा काना गरामा, वो तो एकदम जबरदस्त वजन डालने वाला, आदमी को बर्बाद कर देने वाला अजाब है वो। तो उससे बचा कर को मेरे नेक बंदे दुआ करती हैं, अल्लाह के नेक बंदे, और अल्लाह कुरान में बोला है। तो इसलिए हमें भी क्या करना है, हमेशा दुआ करना, हर दिन हर दिन हर दिन, अल्लाह जहन्नम से बचा, दोज़ख से बचा, दोज़ख में नहीं सरका जन्नत को जाना, वही सा भेज अल्लाह तेरे को। हमें हमेशा दुआ करना, अपने लिए दुआ करना, अपने माँ बाप के लिए दुआ करना, अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने सारे रिश्तेदारों के लिए भी, नाना नानी, दादा दादी, खाला मामू, चिच्चा, फूफा फूफू, ये जितने भी रिश्तेदार हैं उनका औलाद, उनके और एक बात तो मैं मेरी तरफ से आपको एक रिक्वेस्ट के साथ बोलता हूँ, अल्लाह सारी दुनिया के मुसलमानों को बचा कर हमें दुआ करना। क्यों, एक मुसलमान अपने दूसरे मुसलमान भाई के लिए भलाई चाहने वाला, हर मुसलमान भी अपने दूसरे मुसलमान भाई के लिए क्या होना, खैर खाही, यानी भलाई चाहने वाला। भलाई का तो क्या, अच्छा होना तो नुकसान होना नहीं, उसे तकलीफ होना नहीं। वो तकलीफ से बच गया तो अच्छा हुए सर का, नुकसान से बच गया तो नुकसान से बचना सबसे बड़ा नुकसान क्या, जहन्नम, दोज़ख। तो वो दोज़ख से बचने के लिए हमेशा दुआ करो। जब भी तुम्हें दुआ कर लेती, नमाज पढ़ो, अल्लाह से दुआ करते, अल्लाह सारी दुनिया के मुसलमानों को जहन्नम से बचा, अल्लाह करो, दुआ करना। अब वो बचाता है नहीं बचाता है, क्या करता है उसकी मर्जी, लेकिन मांगना तो हमें है। तो ज्यादा हमारा हक किसके ऊपर है, पहले हमारे ऊपर है, हमारा हक हमें मांग लेना अल्लाह से, हमारे फौरन बाद माँ बाप का हक है। क्यों, उन्होंने हमने को जन्म दिए हैं, दुनिया में लाए हैं, तो दुनिया में आने का जरिया उन्होंने बने हैं। तो माँ बाप को गुजर गए हैं, तो उनके हक में भी जिंदे हैं, अल्लाह उनको ऐसे अमाल करने का मौका दे, ऐसी हिदायत दे कि उन्हें जहन्नम में जाना नहीं, जहन्नम के कामा से बचना, वैसे कामा करने की उनकी हिदायत दे, शिरक और बिदअत के कामा से उनको बचा कर हमें हमेशा अल्लाह ताला से दुआ करते रहना। अब जो लोग गुजर गए हमारे रिश्तेदार, दादा दादी, नाना नानी, हमें मालूम नहीं उनके जमाने में कैसे थे क्या है, फिर भी उनके हक में दुआ करो, हो सके तो अल्लाह माफ करो। अब नहीं माफ करता है तो उसकी मर्जी, हमें क्या भी अल्लाह के ऊपर वजन डालने वाले, जोर डालने वाले नहीं, अल्लाह के ऊपर कौन भी जोर डालने वाले दुनिया में। लेकिन मांगने का तो भी हक है, हमारा मांगने का हक है, अल्लाह हम जहन्नम से बचा, जहन्नम से बचा, जहन्नम से बचा, और अपने गुनाहों से माफी मांगता है, मेरे गुनाहों को माफ कर अल्लाह, इस्तिग़फ़ार करते हैं उनसे, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह बोलते ना। तो अस्तग़फ़िरुल्लाह का माना क्या, अल्लाह मैं तुझसे माफी मांगता हूँ। हमारे वाता में उर्दू में बोले तो क्या, एक आदमी के सामने जाएगा तुम्हें माफ करो कर बोलते हैं, समझो एक आदमी, हमें एक आदमी से के ऊपर नाहक मार डाले हैं, एक दो मारा मारे, एक गालियाँ दिया हैं, उसके जाकर माफी मांगते हैं, भाई मुझे माफ कर भाई, पूछते हैं एक बार और एक बार पूछे, उन्हें माफ करता भी ना है, दिल घटकर लग बैठ गया है, नहीं मैं बदला लेना क्या की करना है, लेकिन बार बार पूछते हैं, एक बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार पूछते हैं, तो उसे भी दिल ले थोड़ा नरम होता है। देखने वाले क्या होते हैं, क्या भाई उन्हें त्योहार आकर घिरा लेता है, वो त्योहार है माफी मांगता है, जान दे माफ करा भाई,
तो ऐसा, तो अस्तगफिरुल्लाह का माना क्या, माफी मांगना, अल्लाह से माफी मांगना, अल्लाह मेरे गुनाह माफ कर, हम उर्दू में बोलते हैं ना, वो बात को अस्तगफिरुल्लाह करने की बात। अरब वाले आदमी अस्तगफिरुल्लाह कहते अल्लाह मैं तुझसे माफी मांगता, मेरे गुनाह माफ कर। हम उर्दू में भी वो बात बोलते हैं, अल्लाह मेरे गुनाह को माफ कर, मेरे छोटे गुनाह को माफ कर, मेरे बड़े गुनाह को माफ कर, गुनाह कबीरा सगीरा गुनाह को माफ कर। तो ये हमेशा दुआ मांगना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिग़फ़ार कितने बार करते थे? रोजाना 70 बार। हालांकि उनका कोई गुनाह नहीं, हालांकि उनका ना छोटा गुनाह ना बड़ा गुनाह, क्या भी नहीं, गुनाह नहीं उनके, फिर भी उन्हें क्या करते थे? अल्लाह ताला से माफी मांगते थे रोजाना 70 बार। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। हमारे भाइयों को जरा मालूम ना क्या करते हैं, अस्तगफिरुल्लाह को तस्बीह पढ़ना क्या कि अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा ये नहीं। अस्तगफिरुल्लाह को ये नहीं, अस्तगफिरुल्लाह का मतलब अल्लाह से माफी मांगना दिल से, अल्लाह मेरे गुनाह को माफ कर, अल्लाह मेरे गुनाह को माफ कर, अल्लाह मेरे गुनाह को माफ कर, मेरे माँ बाप के गुनाह को माफ कर। तो ये अल्लाह ताला से हमेशा इस्तिग़फ़ार करते रहना। इस्तिग़फ़ार तो अल्लाह से माफी मांगते रहना चाहिए, और जहन्नम से बचने के लिए, जहन्नम से दूर रहने के लिए, जहन्नम में गए नहीं सरका, गए बगैर जन्नत को जाने के लिए अल्लाह से हमेशा दुआ करते रहना चाहिए। तो आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को नेक तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को जहन्नम से हिफाजत फरमाए, और जहन्नम में भेजे बगैर अल्लाह हम तमाम लोगों को जन्नत नसीब फरमाए। उसके रहम से, करम से, फजल से हम तमाम लोगों को जन्नत नसीब फरमाए। हमारे माँ बाप को और हमारे सारे रिश्तेदारों को और सारी दुनिया के मुसलमान भाइयों और बहनों को अल्लाह ताला उसके रहम करम से जन्नत नसीब फरमाए और जहन्नम से हिफाजत फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।